सर को जानते हैं। ऑनलाइन उनके खुद के जो स्टूडेंट्स है वो सर से परिचित ही है। लेकिन हम लोग का और एक ऑनलाइन ग्रुप चल रहा है, संयोगी छावे IKS 24। तो ये जो विद्यार्थी है, उन्हें महादेवन जी के विषय में थोड़ा सा मैं अगर बताऊं, तो जिनके पास एक डेकेड से ज्यादा RSS के स्वयं सेवक का अनुभव है और 2 डेकेड से ज्यादा चिन्मय मिशन के साथ जुड़े रहने के कारण से वेदांत के टीचिंग का अनुभव है, ऐसे एक बिजनेस से ट्रेडर और केमिकल बिजनेसमैन, और फिर भी अध्यात्म के लिए इतनी रुचि रखने वाले और निष्ठा से अपना टाइम देने वाले लोगों को अपने भारतीय संस्कृति से परिचित करा देने वाले ऐसे महादेवन मेनन जी, ये हमारे हमारे ने पिछले 2 वर्षों में MA इन हिंदू स्टडीज साथ में किया था। और नेट की एग्जाम भी अभी अभी हम लोगों ने दी है, PhD के लिए भी वो तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे महादेवन जी के विषय में मैं तो ज्यादा क्या कहूँ, लेकिन वो हमें सनातन के विषय में जो जानकारी दे रहे हैं और इससे पूरे समाज के एक पोर्शन को लाभान्वित करा रहे हैं। उसके लिए मैं प्रभु जी से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें अच्छा स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और सारी वो सुविधाएं और अनुकूलताएं कर दे कि जिससे वो समाज के लिए और भी अच्छा कार्य कर सके। और अभी मैं महादेवन जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखे और हमें उनके ज्ञान से तथा पानी। फिर और एक बार विल यू बी सेटिंग। हम पहले पहले करोगे तो मैं नीचे कर देता हूँ, और खड़े रह के करने वाले तो ऐसे ही करेंगे। नहीं, आप खड़ा भी रह सकते हो, सेम पोजिशन, थोड़ा नीचे कर। कवर नहीं के लिए। नहीं मत करो। या इट्स ओके। अब याद है, आवाज आ रहा है देवी जी, आवाज आ रहा है? Okay, just check it out. Huh? Okay, so before we proceed, last Sunday, we had हमने जो जो भी सीखा था तो उसके बारे में क्विक रिवीजन हम करेंगे. So people have joined new also. So we had taken the topic of who is a Hindu, and I had from the historical background of the Sindhu River, and the Persians could not pronounce the word sir, and so they changed the Sindhu River into her, sir to her, and then it became Hindu. So all those people living this side of the bank of the river Sindhu were called Hindu. So from the historical perspective, then we went the Smriti perspective. Parasharya Smriti Rishi Parashara was a great Rishi in the Puranas, and so from his perspective, what was the definition given of a Hindu or Bharatiya, Bharati, the people living in this land? All those definitions were given. And we had also seen from the Vishnu Purana, we had seen one mention of the word Hindu. In the Vishnu Purana also, there's a mention of. So people who say that the word Hindu is not there in the Shastra is actually factually wrong. It is there. The mention of the word Hindu is there. Of course, in the Vaidika period, that mention is not there. In the Vaidika period, the mention of the word Bharata is there. Bharata Varsha is there. Hindu and Hinduism or Hindutva, not Hinduism, Hindutva is a mention which is coming later on in the Pauranic age, not in the Vaidika age. The Pauranic age followed the Vaidika age. So in there, Vishnu Purana, we had given one definition I had given you. Then I had also told you about the symbolic meaning of the word Hindu, consisting of two words, Ha and Indu. Ha is the Bija Vakya of Surya Bhagavan. Ha, Bija Vakya, Surya Bhagavan. And Indu means the moon. So how the definition has come, Ha is Surya and Indu is Chandra. So Surya Vamshi and Chandra Vamshi.
So there are two Vamshis. The Bharata Varsha, there are two Vamshis, the Surya Vamshi, Chandra Vamshi. And we all know the great personages who had come in the Surya Vamshi, uh, Bhagavan Rama's, what do you call, um, yeah, Surya Vamshi, Ikshvaku dynasty, that is, the Ikshvaku, Dasharatha, etc. And then the Chandra Vamshi, we know all those. Last time I had given you the great personages of Yayati, Puru, etc. Okay. Now we came to Veer Savarkar's definition of the word Hindu. And in Veer Savarkar's definition of the word Hindu, I'll just write down the definition. So with that definition, we can proceed. Okay. You all must have written down. If you all are, I don't know. If you all want the book, please take a book and a pen over here. Just ask her, she will give you a book and a pen. You can note it down. There's a book there and a pen. I'll just write down that definition. Asindum Sindhu Paryanta Yasya Bharat Bhumika Pitrubuhu Punyabuhu Chaiva Savai Hindu iti Smitaha. Indeed this is called as Hindu Smitaha. Indeed, these are called Hindu. Who? Three conditions are fulfilled there. Sindhum Sindhu Paryanta, from the Sindhu river, Sindhu river, up to Sindhu. Sindhu is the ocean, Indian Ocean. So from the Sindhu river up to the Indian Ocean, Paryanta, Yasya Bharata Bhumika. This is the land which is called Bharata. So from the Sindhu river up to the Sindhu Ocean, Yasya Bharata Bhumika, Pitrubuhu Punyabuhu Cha Eva. Pitrubuhu, ancestral land, meaning for generations together they have been staying here. Punyabuhu, this is a very holy land, Punyabuhu. Savai Hindu iti smritaha. This is called Hindu. So who is called a Hindu? That person is called a Hindu who is staying in this land between the Sindhu river up to the Indian Ocean, who is staying here for long period of time, Pitrubuhu, and considers this land to be holy, Punyabuhu. So three things, three conditions have to be fulfilled to call yourself a Hindu. Now let us expand on this particular thing. Okay. Now let us see this. So one condition which is there, Bhumi. Those who are online, please mute.
Now, as per Veer Savarkar, there are three conditions to be fulfilled to call yourself a Hindu. First is Bhumi, land. So you have to be staying here. Okay. You have to be staying here for generations together. Pitrgohu. And third is Punyagohu, which is this, you should consider this land as holy and sacred. Okay. Now, now before I go ahead, we will do a little bit of discussion. Okay. Now let us see. I'll just okay. Let us know what we'll do is we'll take four places in this country, and then we'll build on it. Okay? Now, suppose I take the north. So north, any one state. Kashmir. Correct. Kashmir. Okay. So from the west, you tell me one state. Okay. Then from the east. Bengal. Okay. West Bengal. Okay. South. Tamil Nadu. Tamil Nadu is better because it will, many things have to be told over there. People living there. So four states we have taken from the north, from four directions. Okay. Now let us do some thinking. Now, people in Kashmir, what is the food? What is that? Food. The main staple food. Kashmiris, what do they? Staple food. Anybody knows? Java is a drink. Chawal, rice. Rice eater? Rice मिलता है उधर? Bread है वो. बासमती से तो वैसे ही है. एप्पल मिलता है, यहाँ पे फ्रूट्स. अच्छा, एप्पल मिलता है. Grains. Okay. Okay. Gujarat. बाजरो. क्या? बाजरा. बाजरा रोटी. ओके, ठीक है. वेस्ट बंगाल. तमिलनाडु. राइस एंड नाल रोटी. सांबर. Okay, rice and sambar. Okay. Now let us see. Now this is the food habits, right? Let us see what is their clothing. What do they wear, the Kashmiris? Woolen. Okay, woolen. Okay. Gujarat. Bandhani. Huh? Bandhani. Okay, bandhani, cotton. Bandhani, cotton. Okay. West Bengal. Dhoti. Dhoti, sari. Now they wear pattern. Tamil Nadu. No shirt. Munda. Mundan. Okay. So, correct. So, now only in two aspects, food and clothing. Do you find anything common here? Anything common in four? We have taken only four examples from four corners of the country. Do you feel anything common in food? Side is grains and south side is rice. Rice. Yeah, but nothing is common. Most common is all vegetarian. The fish is there. Fish is So, majority of fish. Major. But whatever you see, what I want to say, ask is, there's nothing in common. As per the climatic conditions, as per whatever, there's nothing in common. Everything is different. So food, clothing, uncommon. Okay. Any other aspect like we would like to see? Language. Okay. Kashmir mein Kashmiri. Gujarat. Gujarati. Okay. Bengal, Bengali. Okay. Tamil Nadu.
Tamil. Okay. Tamil. So now in language, anything is common. Food, there's nothing in common. In dress, nothing is common. Language, nothing is common. Okay. So when we take the first basic aspect in the people living in this country, that is Bhumi, you will find everything diverse. Everything is diverse. Food is diverse, clothing is diverse, language is diverse. If I'm not mistaken, there is almost 1,000 languages in this country. Yeah. 1,000 languages, 1,000 and above languages, more than 2,000 dialects, food, innumerable food habits. I mean, food, whatever dishes, what I want to say. And every place, in fact, within the state also, if you go, the food habits change. So if you go from Kerala, South Kerala to North Kerala, you'll find different types of sambar also. So Trivandrum sambar will be different from Tirungur sambar, will be different from Palakkad sambar, will be different from Ernakulam sambar. Similarly, if you go same sambar in Tamil Nadu will be different, Karnataka sambar will be different. So one dish itself, every not even 100 kilometers, 50 kilometers, you'll keep on changing. Similarly, in Maharashtra, you come, the Marathi spoken here, Marathi spoken in Konkan or Marathi spoken on the eastern side is way different. And people can easily identify. Okay, you're from here. अच्छा आप कोंकण का है पता चल जाता है हाँ तो पता चल जाता है जैसे बात करेंगे इससे पता चल जाता है कौन सा पार्ट ऑफ द स्टेट से आ गया 100 किलोमीटर दूर जाएंगे तो आपको बदल दिखेगा तो कहना क्या चाहता है कि ये पूरा जो डाइवर्सिटी है ना आपको पहला जो एन्यूमरेशन में मिल जाएगा एंटायर थिंग इज डाइवर्स एंड मेनी ऑफ द पीपल वास्ट मेजॉरिटी they get caught up and said, no, India is not one country, many countries in one country. They only stop over here. They stop at the food, they stop at the clothing, they stop at the language. And बाद में बोलते हैं सब अलग है ना? तो तमिलनाडु बोलते हैं हमको हम अलग हैं, ये अलग है, मराठी बोलते हैं हम अलग हैं, तो सब अलग अलग बोल रहे हैं. क्यों? बस उनका अंडरस्टैंडिंग कल इधर तक ही है. सिर्फ बेसिक आउटवर्ड और एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स को देखकर दे आर सीइंग डाइवर्सिटी और बोलते हैं सब अलग है ना. अच्छा तो ये जो डाइवर्सिटी है डाइवर्स ठीक है अभी मैं ये रब कर लेता हूं. Now let us come to the second aspect, Pitrubhu. Pitrubhu means generational people living in this land for a long period of time. There's one book called Candle Life of Swami Chinmayananda. He gives the definition of a culture. Culture. Sanskriti kya hai? Very beautiful, simple definition it is. It is when a large number of people staying in the same land for a long period of time, they develop a special fragrance. That fragrance is called culture. I'm repeating again. When a large number of people means it has to be a large number only. It cannot be 1, 10, 100, 200,000. It has to be thousands and lakhs of people. Large number of people living in the same geographical area. एक ही जगह पर. Other if you're moving, then वो लोग nomads होता है. Nomads are people who move from one place to another. You have to stay in the same geographical area for a long period of time. Now, when you say long means what? Generational. These people develop a special fragrance. That fragrance is called culture, Sanskriti. The way of life. Way of life. Correct. Absolutely right. So, what do you mean by Sanskriti, culture? Culture is developed
when you stay in one particular place for a long period of time, generations, 3, 4, 5 generations, 6 generations, then those people staying there, they develop a fragrance. Fragrance मतलब क्या होता है? जैसे हम भगवान के लिए अगरबत्ती जलाते हैं, है ना? अभी भगवान को अगरबत्ती का तो आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन वो किसके लिए है? वो प्रतीक, अगरबत्ती किसका प्रतीक है? अगरबत्ती को क्या बोलते हैं हिंदी में हम? अगरबत्ती बोलते हैं, और कुछ बोलते हैं, धूप बोलते हैं, और उसको ये भी बोलते हैं ना, हाँ बराबर. there's another word for that which is called smell, no? क्या बोलते हैं उसको? खुशबू is उर्दू है. सुगंध. हाँ, सुगंध. सुगंध. You see that agarbatti that we light for Bhagavan, it is not actually for Bhagavan. Bhagavan doesn't require our agarbatti. Agarbatti stands for vasana. Vasana. There's a word called vasana. वासना. वासना. वासना मतलब फ्रेग्रेंस होता है, स्मेल. वासना का अर्थ ही स्मेल है. स्मेल मतलब क्या है? एक फ्रेग्रेंस है. ये फ्रेग्रेंस इज नथिंग बट कल्चर. हम जो भी लाइफ में करते हैं, जो भी हम जीवन में करते हैं, ये वासना अनुकूल ही करते हैं. तो हमारा अगर वासना है, हम में अगर एक कुछ वासना है, कुछ साइंस का वासना है, तो हम साइंटिस्ट बनते हैं. हमको वासना है, अच्छा गाने का वासना है ना? तो क्या होता है? सिंगर बनते हैं. तो वासना अनुकूल ही हमारा जीवन होता है, लाइफ होता है. तो ये वासना कहां से आते हैं? संस्कृति, विच इज व्हाट यू कॉल स्टेइंग इन अ पर्टिकुलर लैंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. So this particular aspect, acha, why do we light a agarbatti toward Bhagwan there? You are saying this vasana of mine, जो मेरा शुभ वासना अशुभ वासना दोनों भी होता है. शुभ वासना इज गुड, अनुकूल, धर्म अनुसार जो वासना होता है, जो धर्म के क्या बोलते हैं, परिस्थिति में या उसके अंदर ही जब लिमिट्स में आते हैं, तो उसको हम अनुकूल को धर्म बोलते हैं. जो सोसाइटल रेस्ट्रिक्शंस के बाहर होता है, उसको अधर्म कहते हैं. ठीक है? तो जो शुभ वासना है उसको धर्म कहते हैं, अशुभ वासना है उसको अधर्म कहते हैं. तो दोनों भी सब में है, हर व्यक्ति में ये रहता है. और हम क्या करते हैं? हमारे माता पिता, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर उनको सिखाते हैं ये नहीं करना, झूठ नहीं बोलना. तो अशुभ वासना को कम करने को कहते हैं, या अधर्म को न करने का कहते हैं, और बोलते हैं ये अच्छा है, ये करते जाओ. तो शुभ वासना को और बढ़ा ही देते हैं. तो ये जो वासना, ये जो वासना है, हम अगरबत्ती जलाकर भगवान को हम अर्पित करते हैं. क्या मेरा वासना जो है बहुत अशुभ वासना है, भगवान मेरा अशुभ वासना आप ही ले सकते हैं, दूसरा कोई नहीं ले सकता है. मेरा वासना मेरा बीवी नहीं ले सकता है, मेरा बच्ची भी नहीं ले सकता. अशुभ वासना भगवान ही ले सकते हैं, और भगवान को ही दे सकते हैं मेरा शुभ वासना. क्यों? Because he is all understanding, all merciful. Because I am going and prostrating at his feet, I am saying, Bhagwan, I want to get rid of this vasana. This Ashubh vasana is troubling me. I want to get rid of it. Only you can help me out. Hence, I am surrendering at your feet. इसके लिए हम अगरबत्ती जलाते हैं. सो हम जो भी हिंदुइज्म में, हिंदुत्व में हम जो भी करते हैं, उसका जो अर्थ होता है बहुत गहराई अर्थ है. लेकिन वो अर्थ जानने पर फिर क्या होता है? जो भी कर्म करते हैं उसमें एक स्वाद आ जाता है, क्योंकि हमको जानकर हम कर रहे हैं. नहीं तो फिर क्या है, चलो अगरबत्ती का 100 रुपए का अगरबत्ती बोले, मेरे पास 200 रुपए का अगरबत्ती है, फिर कंपटीशन होता है अगरबत्ती तो क्या बोलते नहीं, कई के लिए, वातावरण के लिए, तो फिर स्प्रे लेके मार दो ना, और भी अच्छा स्मेल है. लेकिन उसके लिए नहीं होता है ना? तो इसका अर्थ वो है. तो ये वासना क्या है? संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है. तो हम में जो हम सब में एक वासना है, सब में एक एक वासना है. सब में शुभ वासना है और सब में अशुभ वासना भी, सब लोग में है. हाँ,
हम क्या करते हैं जीवन में, अशुभ वासना को कम करते हैं, शुभ वासना को बढ़ाते हैं। तो हमारा जो वातावरण होता है, हमारा जो नेबरहुड होता है, वहां से, सिंस वी आर स्टेइंग जनरेशनली इन वन पर्टिकुलर लैंड, हम में ये शुभ वासना बढ़ते ही जाता है। इसके लिए आप जाएंगे तो किधर से हम बोलते भी है ना, वो देखो दैट फेलो इज वेरी मीनली माइंडेड, वेरी मीन माइंडेड। हाउ डिड यू नो? आई केम टू नो, not that I have seen his action and all, but you come to get some feelings, that what it is करके हमको समझ आ जाता है क्या उनका जो कर्म से, उनका जो वाक से, उनका जो अ, प्रकृति से, तो हमको पता चल जाते हैं वो कैसा है ना। तो ये सेकंड प्लेस है, वो सेकंड स्टेप है हमारा। तो ये जो सेकंड स्टेप है, that is Sanskriti, which Savarkar ji has told. This is where we develop our culture. And Punya Bohu, holy or sacred, is civilizational, religion, हमारा जो दर्शन होता है, फिलॉसफी होता है, ये सब पुण्य बुह से आता है। अभी क्या है पुण्य बुह से मतलब? हमारा जो 18 व्हाट यू कॉल नॉलेज सिस्टम्स है। हमारा जो नॉलेज सिस्टम मतलब हमारे जो हिंदू दर्शन में ब्रॉडली 18 नॉलेज सिस्टम्स है। 18। लास्ट टाइम वी सेड हु इज अ मुस्लिम, बोले तो बोला कुरान पढ़ने वाला, तो उनका से एक बुक है। और कौन है? बोलता है मोहम्मद को मानने वाला। तो वन क्रिएटर एंड वन होली बुक। वी हैव गॉट 18 knowledge system, and within that knowledge system, huge literature, huge. If you take 100 lifetimes also, you will not be able to finish the entire knowledge system. उतना है। And they say आज के जमाने में whatever is remaining with us, okay, is not even 5% what is there with us. 95% has gone over time. Over time, then Mughals have destroyed. Many of the temples were, when they were plundered, many of our holy sacred books were also burnt. So what is there today? 5%. And वो 5% का पढ़ने के लिए 100 जन्म लेना पड़ेंगे कम। Right? You are able to hear me online? Online people? Yes, sir. Okay. Good. Thank you. So that comes under the third step of what this Veer Savarkar's definition is. Now, you see most of the people in this country today, most, okay, all come under the first group. They are there, living there. What are the reasons? Many reasons. Because of 1,000 years of slavery, living under foreigners, Muslim, what do you call, invaders, etc. Then Britishers, then subsequently after independence, people who ruled us, they were atheists, non-believers, wanted to create just a without any vision of culture. They did not have the vision of the culture. So they said, no, religious studies, nothing. They kept the generations away from the second and third, and they said nothing to doing, only you live here. And so they made us just live in the first aspect. आप हिंदू हैं? हाँ है। कैसा है? कैसा मालूम आप हिंदू है? मेरा बर्थ सर्टिफिकेट में लिखा है। तो उनका अंडरस्टैंडिंग है दैट आई एम अ हिंदू बिकॉज वो बर्थ सर्टिफिकेट में है, उतना ही है। से ज्यादा उनको कुछ जानकारी नहीं है। क्यों हिंदू है पता नहीं है, माता पिता हिंदू है इसके लिए मैं भी हिंदू। लेकिन हिंदुइज्म क्या है, हिंदुत्व क्या है, हिंदू कौन है, नहीं पता। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर हियर, लिविंग हियर इन द फर्स्ट स्ट्रेटा ऑफ द डेफिनेशन ऑफ हु इज अ हिंदू। एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। आज का प्रॉब्लम अगर हम दिखाई देता है, जो महाराष्ट्र में दिखाई दिया, अभी जो दिखाई देता है,
या तमिलनाडु में कुछ महीने पहले दिखाई दिया, है ना? और घड़ी घड़ी ये बाकी जगह में भी दिखाई देता है। ये क्या है? यही है जो हमको रूल करते हैं। वो बस इधर तक ही उनका अंडरस्टैंडिंग है। उनका अंडरस्टैंडिंग इतना ही है, तो वो बोलते हैं हाँ ऐसे ही है। हमारा खान पान अलग है, हमारा क्लोथिंग अलग है, हमारा लैंग्वेज भी अलग है। तो उनको पता नहीं है आगे क्या है। इसके वजह से हमको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इंडिया में। सो व्हाट हैज टू बी डन? वी हैव टू टेक दिस पीपल हु आर इन द फर्स्ट स्ट्रेटा, जो पहला स्ट्रेटा में, उसको स्लोली लेके सेकंड जगह पे लेके आना पड़ेगा। संस्कृति के साथ जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ेंगे? हमको तो पता होना चाहिए, फिर ही तो दूसरे को बता सकते हैं ना। हमको पता होगा तो हम जाके दो चार जन को बताएंगे, चार जन जाके 10 16 जन को बताएंगे, 16 जन के और 100 जन को बताएंगे। ऐसे ही तो चल जाएगा। नहीं तो देयर इज नो अदर एवेन्यू फॉर हिंदूज, है ना? हम हिंदुओं के लिए दूसरा जगह ही नहीं, कहां पर बताएंगे? एकजुट हम आते ही नहीं, है ना? मुझे अभी भी एक याद है, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होता है ना, तो सब लोग का फैमिली ग्रुप्स भी होता होगा, सब लोग का होगा ना फैमिली ग्रुप, कजिन्स, एवरीवन इज देयर इन फैमिली ग्रुप। तो ऐसा सबका व्हाट्सएप में फैमिली ग्रुप्स होते हैं। तो मेरा भी एक फैमिली ग्रुप है। तो मैं ये सब चीज में इसको छोड़ता ही नहीं है। तो मैं भी बीच बीच में डालता हूँ, है ना? तो हमारे हिंदू धर्म के बारे में कुछ डालते हैं। फैमिली ग्रुप है, हमारा मंदिर का ग्रुप है। मतलब हमारा जो मंदिर है फैमिली में, वो मंदिर का ग्रुप है। तो भाई जब मंदिर के बारे में डालते हैं तो बोलते हैं इधर ये सब नहीं डालेगा रिलीजन का। मैं बोला मंदिर का ग्रुप है, आप बोलते हैं मंदिर का ग्रुप में, आई मीन मंदिर का ग्रुप में भगवान के बारे में नहीं डालेगा। तो मैं बोला या आप, मेरा दिमाग हट गया या आपका दिमाग हट गया? तो सिखा दो क्यों नहीं डालने का। गिव जस्टिफिकेशन, जस्टिफाई करो क्यों नहीं डालने का। तो बोलते नहीं नहीं ये है क्या, अभी बोलते हैं क्या, सेक्युलर, हमारा ग्रुप सेक्युलर है। तो भाई बोला सेक्युलरिज्म है क्या? वो भी जरा बता दो सेक्युलरिज्म है क्या। फिर उन्होंने कुछ बताया, सेक्युलरिज्म मतलब सब सर्वधर्म समाभाव, सब बोलते हैं ना, सर्वधर्म बड़ा पाव वगैरह सब ऐसा बताते हैं, है ना? तो मैं बोला लेकिन ये तो हमारा फैमिली ग्रुप है, इधर बाकी धर्म का कोई है ही नहीं। तो आप कैसा फिर हमें बोले? यार ये मंदिर का ग्रुप है, मंदिर का उधर उत्सव करना है, मंदिर के लिए कुछ करना है, तो आप लोग सब वो भगवान के लिए करते हैं। तो ये तो हमारा क्लोज्ड ग्रुप है, ये तो ओपन ग्रुप नहीं है। तो क्या है, मेरा कहना ये है, जो दूसरा धर्म है ना, धर्म का जो प्रैक्टिशनर्स है, वो लोग एक जगह में हफ्ते में एक दिन मिलते हैं। जैसे फ्राइडे हो गया, संडे हो गया, वो लोग मिलते हैं। उधर से उनको सब कुछ पता चल जाता है, क्या हो रहा है समाज में, क्या हो रहा है उनको पता चल जाता है। हम हिंदू लोग मंदिर में एक टाइम में तो जाते नहीं है। अगर जाएंगे भी तो उधर का जो पुजारी है वो बताते नहीं है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं है, या इंटरेस्ट होगा भी तो कोई सुनने वाला भी नहीं है। तो हम हिंदुओं को कहां से पता चलेगा इसके बारे में? स्कूल में तो नहीं सिखाता है, कॉलेज में नहीं सिखाता है, यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाता है, घर वाले लोग को भी पता नहीं है, क्योंकि जनरेशन अभी 70 80 साल से तो कोई सिखाए नहीं है। तो पता कहां से चलेगा बच्चे लोग को क्या है कल्चर, क्या है संस्कृति, क्या है, कैसा पता चलेगा? हमारा जो ग्रुप है वो ग्रुप में भी फिर सेक्युलर वाले लोग उड़ जाते हैं। तो अगर वो ग्रुप में भी नहीं बोलेंगे तो फिर कहां बताएंगे? वेयर विल वी टेल? एंड दैट इज अ बिग challenge to all of us Hindus. So wherever we are, we have to tell those people, please tell us one avenue where you will come to know. Don't you want your children, grandchildren to be dharmic? Don't you want your children to be living a good life, contributing to the society and country? तब बोलेगा हाँ हाँ यस यस यस। तो वो कहां से मिलेंगे आप लोग? संस्कृति से मिलेंगे ना। संस्कृति के बिना किधर से मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। आपको दूसरा सब सेक्युलर एक्सरसाइजेस वगैरह आपको बाहर मिल जाएगा बच्चे लोगों को सिखाने का। लेकिन संस्कृति कहां से मिलेगी आपको? बच्चे लोग का संस्कार कैसा बढ़ाएंगे? एवेन्यू नहीं है। तो जिधर ऐसा संस्कार सिखाने वाला जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके साथ जोड़ना बहुत आवश्यक
है ना। तो हमारा जो संघ का, अभी अरविंद जी इधर बैठे हैं, तो संघ का शाखा लगते हैं। तो शाखा लगते हैं तो शाखा में क्या होता है, हमको संस्कार के बारे में सिखाता है, और सब एकजुट आने का, यूनिटी इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन लर्न इन शाखा। व्हेन वी आर इंट्रोड्यूस्ड शाखा में, जब ये आते हैं सब एक्सरसाइज होता है, सब बैठते हैं, सब लोग बैठते हैं, फिर बाद में लास्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं, स्वयं सब लोग को इंट्रोड्यूस करते हैं, हर हफ्ता करते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं सोचता था, अरे हर संडे हम इंट्रोड्यूस करते हैं, क्यों करते हैं? उसके पीछे भी एक संस्कार है, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जब ये इंट्रोड्यूस करवा करते हैं, तो हम ऐसा नहीं बोलते हैं हमारा सेकंड नेम नहीं बताते, फर्स्ट नेम नहीं बताते, क्योंकि सेकंड नेम के साथ हमारा जाति जुड़ जाता है। तो बोलते हैं फर्स्ट नेम ही बताओ, तो फर्स्ट नेम सब लोग बताते हैं, सब एकजुट रहते हैं, एकजुट बैठते हैं, एकजुट कुछ कुछ त्योहार आ गया, एकजुट खाना खाते हैं, एकजुट जो भी करना है एकजुट ही करते हैं। सो द बच्चे लोग से जो उनको संस्कार मिलते हैं, एक साथ बैठना, एक साथ खाना, एक साथ बोलना, एक साथ मनस्थिति बनाना, इसमें से ही कल्चर, उससे कल्चर आता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्चर आना, एंड दैट यू विल गेट संघ में आता है। वैसे ही दूसरे जो धार्मिक संस्थाएं हैं वहां पर भी मिलते हैं, वहां पर भी आपको दिखाते हैं। लेकिन शाखा में जो होते हैं फिजिकल एज वेल एज बौद्धिक भी होता है। तो बौद्धिक कोई हमारा जो शिक्षक होते हैं, तो वो लोग बौद्धिक एक एक टॉपिक निकाल देते हैं, बोलते हैं कॉन्टेक्सचुअल टॉपिक होगा, रिसेंट वो टॉपिक के बारे में चलो आप लोग बताओ। तो सब लोग जरा जरा दो दो सेंटेंस बताते हैं, तो उनको बौद्धिक भी होता है उधर। तो क्यों बौद्धिक होने में, विचार करने में, और उनका जो मन का जो डर होता है पब्लिक स्पीकिंग, वो पब्लिक स्पीकिंग से उनका डर निकल जाता है। नहीं तो हम जब भी पब्लिक में जाते हैं तो हाथ पैर जरा पहला हिलते हैं ना, सबको लगता है एक्सरसाइज कर, एक्सरसाइज नहीं, हाथ पैर हिल रहा है। तो 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 ये शाखा में क्या होता है, वो डर निकल जाता है, भय निकल जाता है, एक साथ बात करते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं। और बौद्धिक का भी उसका एक्सरसाइज होता है, फिजिकल, सिर्फ फिजिकल नहीं, लेकिन मेंटल एक्सरसाइज, इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज भी होता है। सो दिस संस्कृति, most, as I told you, going back to that, most of the people are in the first. We have to pull these people into the second line. How will you pull? Societal we are doing, as I told you. We have to slowly, that is the government is also doing now, slowly introduce the education, हमारा जो educational books वगैरह है, written through proper factual historical what do you call academicians. They started writing the correct history of India. जो भारत देश का जो सही हिस्ट्री है उसके बारे में लिखने को और सिखाने को शुरू किया। तो उसमें से क्या होगा, अभी नहीं, उसका जो असर है आपको 3-4 जनरेशन आगे मिलेंगे, आपको 50 साल के बाद मिलेंगे उसका। लेकिन 50 साल के बाद उसका आपको बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देगा। शायद 50 में ज्यादा ही बोल गया, चलो 10, 15, 20 साल में हो जाएगा उसका, क्योंकि 2 जनरेशन, 20-25 ईयर्स में 2 जनरेशन का आ जाता है, 1.5 जनरेशन का आ जाता है। तो यू विल फाइंड द चेंजेस कमिंग इन द नेक्स्ट जनरेशन, राइट। थर्ड is a punyabo or the holy or the sacred, as I told you. Hamara all our 18 knowledge systems come under here. They come under the third. It's not enough to leave those people at the second. They should come to the third. Elevate. And from year to year will not be difficult. It will happen very fast. Year to year is a challenge. ये बहुत बड़ा चैलेंज है। यहां से यहां आना ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे। अपने आप जो संस्कृति है, कल्चर में, संस्कार में एक शक्ति है, वो शक्ति ही खींच के लेके जाके आपको इधर लेके आए। क्योंकि ये जो शक्ति है, ज्ञान का इच्छा रखना, वो इच्छा वो अपने आप प्रकट हो जाता है। क्योंकि ये जो हमारा नॉलेज सिस्टम्स है ना, ये ईश्वर दान है, ईश्वर से ही आया है। तो ईश्वर से ही आया है, तो इसके लिए क्या होगा, ईश्वर ही संभाल लेगा। तो फ्रॉम ईयर टू ईयर विल नॉट टेक टाइम, अपने आप आ जाएगा। स्लो, यू विल गेट पुल्ड इनटू इट। हाँ, सो दिस टू ईयर
From year to year will not, but from year to year is a challenge for all of us. And what the challenge India is facing today at this moment is a challenge to get this people here to this. True. Now, when you look at the second, this is a way of life. Way of life. मतलब हम जैसे जीता है तो उसमें जैसे मैंने बताया फ्रेग्रेंस है, तो जीने का एक हमको कुछ पता ही नहीं है, बोलते हैं शाम को अगरबत्ती जलाओ, पूजा करो, तो क्या करते हैं, दिया जलाते हैं, चलो वे ऑफ लाइफ। लेकिन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब नहीं पता, लेकिन करते हैं क्यों, मम्मी डैडी ने बोला है ना, तो करते हैं, लेकिन वे ऑफ लाइफ है, राइट। द थर्ड इज अ व्यू ऑफ लाइफ। दिस इज अ व्यू ऑफ लाइफ। व्यू ऑफ लाइफ मतलब क्या होता है, दर्शन होता है, मतलब एंटायर यूनिवर्सल व्यू, कंप्लीट व्यू। कंप्लीट व्यू मतलब एंटायर अनंत कोटि ब्रह्मांड का आपको दर्शन होना चाहिए, तो आप इसमें जो व्यू है, इस व्यू में मैं बाद में एक टॉपिक में आ जाऊंगा, मैं बाद में बताऊंगा। तो व्यू ऑफ लाइफ एंड दिस इज वे ऑफ लाइफ, जीने का एक रीति। और ये क्यों ऐसा जीने का रीति, इधर आपको समझ में आएगा क्यों ऐसा अगरबत्ती जलाने का, क्यों दिया जलाने का, भगवान कितना है, एक ही भगवान है क्या, अनेक भगवान है, आर ऑल रिलीजन सेम। अच्छा टॉपिक है, हम अभी डिस्कस कर सकते हैं, आर ऑल रिलीजन सेम। ये टॉपिक बहुत बहुत बढ़िया टॉपिक है, हम डिस्कस कर सकते हैं, ये हमारा डिस्कशन का एक टॉपिक हो सकता है ना, आज एक टॉपिक। हाँ हाँ, बट देर आर मेनी पीपल हु से मेनी, देर आर मेनी पीपल हु से मेनी। हाँ करेक्ट, एब्सोल्युटली। सो we'll come to that particular topic also. So now, way of life, view of life, right? This much is okay. So from Veer Savarkar's definition, you can get an all-encompassing view. Veer Savarkar was one of the greatest philosopher, warrior, Kshatriya, Brahmana, you want to say. His contribution to Bharata Desha is immense. You read his books, you'll come to know what a great personality he is. Unfortunately, none of us have read much, but you should read his books. You will come to know what is his contribution to Bharata Desha, Bharata Sanskriti. Okay. Now we will take up the second topic. What is that? Culture. Okay. I'm going to rub this off. You want to take a picture photo? Take it. Okay. Clear है क्या? मन तो एक ले लो, जिसको अगर बाद में देने का तो लेके दे सकते हैं। एंड टेक अ फोटोग्राफ ऑफ, हाँ जल्दी ले लो, जल्दी ले लो। You start with them. No, it's okay, you take. हाँ ओके। Smile. Okay, chalo. So first, as I told you, the first step was diverse, right? Second and third step, you'll find your unity. In the second and third step of the definition given of a Hindu by Veer Savarkar, you will find your unity. So if you look very carefully, if you remain at the first step, you'll always think everything is different. But slowly, when you come to the Sanskriti and come to the 18 knowledge systems, you'll find the unity amongst in the diversity. So they say unity in diversity, you know. Actually, if you see, it is diversity in unity. It is diversity in unity.
This unity, which is one, unity means one, diversity means many. From the one has come the many. आजकल क्या पढ़ाते हैं? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उल्टा बताते, यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब सब अलग है, उसका यूनिटी हम लेके आने का कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो जो क्लोथिंग ये सब है ना, वो सब अलग अलग है, सब लोग अलग है, मतलब वो लोग इनहेरेंटली एसेंशियली अलग है, उसका यूनिटी लेके आने का कोशिश कर रहा है। एक्चुअली दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच। यू शो देम द यूनिटी, फ्रॉम द यूनिटी हैज कम द डाइवर्सिटी। एक से अनेक हो गया है, अनेक से एक लेके आने का आप कोशिश करेंगे तो नहीं हो। सो एक से अनेक, यूनिटी, it is like this, you know, if you see, unity is a very substratum, diversity is a superimposition. This is the substratum. Substratum मतलब क्या होता है? आधार होता है, आधार। यूनिटी आधार है। हमारा जो संस्कृति और हमारा जो दर्शन है वो सब जो है ना आधार है, आधार में ही डाइवर्सिटी दिखाई देता है। तो आपको अगर बंगाली में क्या हमारा, अच्छा फर्स्ट एक्सरसाइज वो भी देखेंगे, बंगाली का जो पोषण होता है, खान पान होता है, या तमिल तमिल का होता है, या गुजराती का होता है, या कश्मीरी का होता है, सब अलग अलग थे। तो सब वन डाइवर्सिटी है ना, यूनिटी 2 and 3 है। नाउ one minute, I'll just have some water. You all want water? Pass it on me. They want some water. Well, get up and be careful. Anybody else? हाँ, so time is running out. So Yes. ठीक, तो we'll come to the second step. Okay, there's a lot you can, there's a lot to talk over there, but we will, time is of a big essence here. So when we come to the second step of Sanskriti, culture, we'll take up a topic which is called Varna Vyavastha. As I told you, in the first step, everything is diverse. सबको अलग है ना, सब कुछ अलग है फर्स्ट स्टेप में, है ना, ड्रेस अलग है, लैंग्वेज अलग है, सब कुछ अलग है। सेकेंड स्टेप में आएगा तो वर्णन है। आज फर्स्ट स्टेप में सब अलग है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज हिंदू क्या बोलते हैं रिलीजन के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर आपको क्या दिखाई देता है? कौन सा बात होता है सबसे ज्यादा? जाति का, जाति का, है ना, जाति का, है ना, सबसे ज्यादा सब लोग जाति के बारे में बात करते हैं। बिकॉज एवरीवन से सब लोग बटा हुआ है, सब डाइवर्स है। क्यों? क्योंकि पीपल आर स्टेइंग, स्टिल स्टेइंग इन दैट फर्स्ट स्टेप। उनको पता नहीं है, गहराई में नहीं जाते हैं। अच्छा, ये जाति का जो कंसेप्ट है हमारे शास्त्र में है क्या? नहीं है, शास्त्र में नहीं है, वैदिक शास्त्र में भी नहीं है, पौराणिक शास्त्र में भी नहीं है। तो ये कहां से आया ये जाति का? हाँ, ऑक्यूपेशनल। हाँ, so the word jati actually, which in English it means caste, is actually a derivation of the Portuguese, from the Portuguese. It's from the Portuguese से आता है, Portuguese word से derivation मिलता है आपको ये word का, Portuguese।
But somewhere in the 1870, it's 1870, 1880, exact year I do not know. 1830 में the first caste census was done by the Britishers. पहला जो सेंसस इंडिया में हो गया था 1830s में हो गया था. उसके बाद 1880s में फुल फ्लेज सेंसस हो गया था. मतलब एकदम 1830 का जो सेंसस था बस क्या बोलते हैं पैचवर्क सेंसस था. But full-fledged census was in 1881 or 1882 was. And the 1871, 1881, I don't remember. Check it out. They are the people, the Britishers are the people who put us in compartments. जाति का कंपार्टमेंट में. तब बोला ये जाति का ये जात का है वगैरह वगैरह. ऐसा जाति का उन्होंने ब्रिटिशर्स ने डाला है. हमारे शास्त्र में जाति का ये वर्ड का जाति का मेंशन ही नहीं है. जाति एक्चुअली इन संस्कृत मीन्स स्पेसी. जाति का अर्थ है ना एक्चुअली मीन्स स्पेसी. स्पेसी और स्पीशीज और हाउ एवर यू वांट टू प्रोनाउंस इट. लाइक वी से मनुष्य जाति. हम कहते हैं ना मनुष्य जाति या मृग जाति या और क्या जाति हो सकता है वृक्ष जाति है ना. तो इफ यू गो टू बोटानिक इफ यू आर अ बोटानिकल स्टूडेंट तो फिर बॉटनी का जाति स्पेसीज होता है. अलग अलग स्पेसी होता है. यू कम टू जुआलॉजी देन उधर भी होता है हर्बीवरस कार्निवरस है ना. एक एक कंपार्टमेंट मतलब उसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं. स्पेसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं. हाँ Homo sapien, whatever, all those distinctions. So all classifications. Jati ka arth in Sanskrit it means classifications. But there is no varna jati hai nahi. I mean not varna, there is no caste. No caste. Then where does this word come from? From the Shastra? No. Shastra में ऐसा mention ही नहीं है. Now we will come to, let us see in the varna vyavastha. What is this varna? Uska vyavastha means classification. Varna means color. Varna का अर्थ होता है color. Actual meaning of the word varna is color. Vyavastha means vyavastha is a Hindi word. Arrangement. Now ये वर्ण में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण है. 4 वर्ण है. भगवान भी कहते हैं भगवत गीता में चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः करके बताते हैं ना 4th चैप्टर में. सो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम मैं नहीं बनाया है. भगवान ही खुद कहते हैं. और अगर आप कोई कम्युनिस्ट को सुनेंगे तो ये खाली पहला पाद है जो फर्स्ट क्वार्टर है वो खाली बताते हैं. वो सेकंड क्वार्टर नहीं बताते. गुण कर्म विभागशः मतलब ये 4 वर्ण मैंने सृष्टि किया है बनाया है गुण और कर्म के अनुसार. कैसा आया है? गुण और कर्म के अनुसार ये व्यवस्था हुआ है. ये व्यवस्था है 4 वर्णों का. ये गुण और कर्म के अनुसार में डिस्टिंक्शन क्लासिफिकेशन किया है. भगवान खुद कहते हैं. तो अगर अब कोई कम्युनिस्ट को सुनेंगे ना तो खाली वो पहला क्वार्टर बोलते हैं अरे चातुर्वर्ण. भगवत गीता में लिखा है ना भगवान ने 4 वर्ण बनाया 4 जाति बनाया. अरे 4 जाति नहीं बनाया 4 वर्ण बनाया. और किसके अनुसार बनाया? जन्म के अनुसार नहीं, गुण और कर्म के अनुसार. अच्छा गुण क्या है? गुण मतलब क्वालिटी. कर्म मतलब क्या है? एक्शन. तो क्वालिटी और एक्शन के अनुसार होता है. तो जन्म है ही नहीं. लेकिन हमारा क्या होता है? ब्राह्मण अगर पिताजी माताजी ब्राह्मण है तो मैं भी ब्राह्मण है ना. माताजी पिताजी शूद्र है तो मैं भी शूद्र वगैरह वगैरह. तो गुण और कर्म के अनुसार 4 वर्णों का सृष्टि किया है. भगवान खुद कहते हैं. Now, somebody is speaking online. Okay, just mute please. हाँ ठीक है. तो मैं अभी रब कर रहा हूँ.
अभी ठीक है। ठीक है, 10 मिनट हमने लेट स्टार्ट किया तो 10 मिनट एक्स्ट्रा मैं ले लेता हूँ आज में। ठीक है, वी कैन कंटिन्यू दिस टॉपिक नेक्स्ट संडे ऑल्सो, बिकॉज दिस इज अ टॉपिक वी शुड अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। मेनी मेनी हमारा जो प्रॉब्लम्स है, सोसाइटी प्रॉब्लम्स है, जाति का प्रॉब्लम्स है, सब कुछ समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक, तो अभी क्या है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ठीक है ना, गुण और कर्म के अनुसार। ठीक है, मैं बताया गुण कर्म के अनुसार। तो एक गुण, ब्राह्मण में गुण क्या होना चाहिए? एक गुण है ना, 3 गुण है। जैसे 4 वर्ण है, 3 गुण होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक, राजसिक, तामसिक, त्रिगुण। 4 वर्ण मैंने बताया आपको, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वैसे गुण और कर्म के अनुसार गुण 3 गुण है, सात्विक गुण, राजसिक गुण, तामसिक गुण। तो ये जो ब्राह्मण में ये गुण, कौन से गुण गौण हो है और कौन सा व्हाट यू कॉल प्राइमरी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, उसका डिस्टिंक्शन किया है। जैसे आप देखेंगे तो ब्राह्मण में सात्विक गुण प्रधान है, राजसिक गुण उपसर्जन है, उपसर्जन मतलब सेकेंडरी है, सेकेंडरी सबऑर्डिनेट, एंड तामसिक गुण उससे भी सेकेंडरी है, मतलब टर्शरी है। प्राइमरी सात्विक गुण होना चाहिए। अच्छा, सात्विक गुण में मतलब क्या है? सात्विक गुण मतलब मन को शांत रखना। जिसका मन शांत है वो सात्विक गुण का प्रकट है, वह प्रतीक है। राजसिक मतलब क्या है? रजस, जिधर कुछ करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, एम्बिशन है, एम्बिशियस है। हाँ, हाँ, ऑल दोस कम्स इन रजसिक। तामसिक मतलब अज्ञान का प्रतीक है, डार्कनेस का प्रतीक है, नींद का प्रतीक है, वैसा। तो जब भी नींद आते है तो तामसिक है ना, लेजीनेस एंड प्रोक्रास्टिनेशन। बोलते हैं आज चलो करो, है ना, कम डू दिस, या झाड़ू मत, बाद में करेंगे। बोलते हैं बाद में, प्रोक्रास्टिनेशन, लेजीनेस, दैट लेजीनेस इज अ ऑफ तमस। Sattva is when you have predominantly mind is calm, predominantly mind is law, knowledge oriented, ज्ञान, हाँ कुछ सीखना है, कुछ मालूम होना है, तो उसका मतलब सात्विक गुण है। रजस कुछ करके दिखाना है, तमस लेजीनेस है। तो ये जो 3 गुण है, ब्राह्मण में सत्व गुण प्रधान है, ब्राह्मण में सत्व गुण प्रधान है। इसके लिए हाँ, बाद में उसका भी डिस्टिंक्शन मैं बताएगा। रजस गुण उसका उपसर्जन है, उपसर्जन गौण सेकेंडरी, तमस उससे भी सेकेंडरी मतलब टर्शियरी। क्षत्रिय में रजस इज प्राइमरी, क्षत्रिय में रजस ही होना चाहिए। लड़ना है, बचाना है, देश के लिए कुछ करना है ना, समाज के लिए कुछ करना है, तो रजस होना चाहिए। तो रजस प्रीडोमिनेंट है। लेकिन सेकेंडरी जो है ना, सत्व है। क्यों करना है? देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, वैसा। तो सत्व उसके पीछे है। क्यों मैं बताता हूँ, बाद में मालूम पड़ेगा। थर्ड उसका तमस है, सबसे कम। मतलब वो ज्यादा ऐसा सोता ही नहीं है, हमारे जैसा 12 घंटा 14 घंटा ऐसा नहीं सोता। तो 4 घंटा, है ना। जब भी अभी ऑपरेशन सिंदूर हो गया था, तो तभी मैं गांव जा रहे थे, तो मेरे साथ एक एयरफोर्स का एक कपल बैठे थे। वो आया था, बताया नहीं था हमको एयरफोर्स का है। फिर बाद में स्लोली बातों में से मालूम पड़ गया। यहाँ पर ये बॉम्बे में वो लोग था, तो यहाँ का जो आउटस्कर्ट्स ऑफ बॉम्बे में एयरफोर्स स्टेशन है, वहां पर वो है। ठीक है, तो वो बोलते हैं 4 दिन ही डिड नॉट कम, 5 days ही डिड नॉट कम होम। द वाइफ इज स्टेइंग इन द उनका क्वार्टर्स में, they did not come home, he was wearing his what you call that island dress, that dress, and he was there only 5 days, है ना। हमको लगता है कैसा करता है ना, हमको तो रात का 8 घंटा और दोपहर का 3 घंटा नहीं मिलेगा तो बहुत हेडेक होता है, कॉफी नहीं मिलेगा तो और बड़ा प्रॉब्लम। और 5:15 बज गया, 5:20 भी हो गया। चलो, वैश्य,
वैश्य, वैश्य में क्या है? वैश्य में रजस प्रधान है, लेकिन सेकेंडरी तमस है, सत्व लास्ट है। वैश्य जो होते हैं ना, वो भी बिजनेसमैन है, ट्रेडर है, काम करते हैं। बिजनेसमैन अगर घर पे सोएगा तो बिजनेसमैन नहीं है, उसको काम करना पड़ेगा, रजोगुण होना ही चाहिए। लेकिन सेकंड इज तमस, थर्ड ओनली सत्व। मतलब क्या है? सेकंड इज तमस, सेल्फिशनेस, मैं कहा प्रॉफिट ओरिएंटेड है, तो इधर सेल्फिशनेस आता है, इधर सेल्फलेसनेस आता है। देश के लिए, देश के लिए, समाज के लिए। तो ये और इसमें अंतर है, इधर सेल्फलेसनेस है, इधर सेल्फिशनेस है। मुझे मेरा फैमिली के लिए करना है ना, वैसा। अच्छा, शूद्र, तमस, रजस, सत्व लास्ट। सोते रहता है, काम पे नहीं जाना है, जाना जाना काम पे जाना। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब ये बच्चा ग्रेजुएट होता है, ग्रेजुएट मुश्किल से हो गया, अभी काम नौकरी के लिए बोलते हैं नहीं जाना है, तो माता पिता बोलते हैं जाओ, कैसा भी जाके जाओ नौकरी में। तो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं जाना है। तो फिर वो पिताजी फोन करके दोस्त को बोलता है, उसको एक नौकरी दो ना आपका ऑफिस में। क्या किया है? बोलते हैं बीकॉम किया है। हाँ ठीक है, भेज दो। तो धक्का मार के बेचता है। तो उसका फ्रेंड, वो पिताजी का फ्रेंड, बोलते हैं मैं ज्यादा कुछ नहीं दूंगा। नहीं नहीं, कुछ भी मत दो, जाके आने का भी पैसा मत दो, मैं ही दूंगा, खाली रख दो उसको उधर। इधर नहीं तो सोता ही रहता है 16 घंटा। तो क्या करते हैं पिताजी, बोलते हैं, जाओ, कितना पगार, पगार सब देख लेंगे, तुम जाओ। तो जाते हैं उसको, है ना, पगार नहीं लेते हैं। लेकिन क्या करते हैं पिताजी, पिताजी जाके उसको जाके बोलते हैं महीने के एंड में, ये ले 10,000 रुपये उसको दे दे पगार। पिताजी खुद पॉकेट से निकल के देते हैं, है ना। तो ये लड़का जाने को शुरू करते हैं, अभी जाना ही पड़ेगा, है ना। 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने ऐसा हो गया। बाद में पिताजी देखते हैं ये स्वयं उठ जाता है सुबह को और ऑफिस चला जाता है। पहला ऐसा नहीं धक्का मार के उसको भेजना पड़ता था, अभी धक्का विक्का नहीं, अपने आप उठ जाता है, बोलते हैं, जल्दी जाने का, टिफिन टिफिन मैं बाहर खाना खाएगा, मेरे को आज बहुत काम है। तो मम्मी डैडी को पता चलता है, हाँ ये अभी रेस्पॉन्सिबल हो गया, है ना। तो पिताजी क्या करते हैं, फोन उठाते हैं और वो ओनर को बोलते हैं, ये अभी पैसा दे उसको कुछ अच्छा पगार। बोला क्यों? वो बोलते अभी नहीं देगा तो मैं दूसरा किधर नौकरी ढूंढूंगा। क्यों? मालूम पड़ गया ये जाने को शुरू हो गया। दिस फेलो कैन नॉट। अभी वो आके बोलते भी है, क्या खाली 10,000 मिलते हैं, मेरे को इससे ज्यादा उधर मिलता था, 20,000 मिलेगा, और उधर जाकर काम करेगा तो मिलेगा। तो पिताजी को भी समझ में आ गया कि ये अपने आप अपना 2 पैरों में खड़ा होने का काबिलियत आ गया, मतलब उसमें रजस आ गया, रजोगुण प्रदान होने को शुरू किया। तो क्या हो गया, स्लोली इधर आ गया, वो इधर से इधर आ गया। शूद्र से वो क्या बन गया, अभी वो वैश्य बन गया। देखो, तो उसका अर्थ क्या है? कोई भी व्यक्ति हो, ऊपर से नीचे भी गिर सकता है, नीचे से ऊपर भी जा सकता है। अपना जो गुण और कर्म के अनुसार हमको ऊपर भी ले जा सकते हैं, और गुण का अगर हमको, हमारा गुण कर्म अनुसार नीचे भी जा सकते हैं, गिर सकते हैं। ये हमारे हाथों में, हमारा पुरुषार्थ हमारे हाथ में है, हमको क्या करना है। तो जैसे अभी, अच्छा कर्म क्या होगा? कर्म अभी देखेंगे तो ब्राह्मण में क्या होएगा, टीचर्स, टीचर्स होते हैं ना, वो लोग ब्राह्मण होता है, क्यों सिखाता है, उनको सिखाने का बहुत अच्छा लगता है, ज्ञान का उनका मेन, उनका ज्ञान होता है। तो टीचर्स, फिलोसफर्स, एकेडमिशियंस वगैरह वगैरह सब ब्राह्मण होता है। क्षत्रिय सोल्जर्स, वॉरियर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, लीडर्स, वो क्षत्रिय होता है। वैश्य बिजनेसमैन, एग्रीकल्चर वगैरह वगैरह सब वैश्य होता है। ओके, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन एंड ऑल वैश्य होता है। शूद्र होता है, लेबरर्स होता है, दे, वो काम करते हैं, लेकिन कोई बोलना पड़ेगा, जा तू चर्चगेट में जा, इसका ऑफिस में जा, मिस्टर नटकर्णी का ऑफिस में जा, वो राइट वाला ऑफिस है, हाँ, 3rd फ्लोर,
उधर जाके फाइल लेने का और फाइल लेके आने का, ठीक है। जाएगा वो, नडकर्णी का ऑफिस में गया, शाम को आ गया, अच्छा वेरी गुड। अच्छा तो शेनॉय के ऑफिस में नहीं गया, आपने नहीं बोला, अरे शेनॉय का ऑफिस उधर ही बाजू में है ना, शेनॉय का ऑफिस में जाने का था, आपने बोला क्या था, बोला क्या, नहीं बोला ना, बोलना चाहिए था। तो he will not have an inclination to think for himself, but he'll do everything as you tell him. He is a Shudra. Because Sattva is last. So he doesn't have an thinking capability. है ना, थिंकिंग कैपेबिलिटी होगा तो नटकर्णी का ऑफिस गया, मैं ये भी पूछ के आएंगे ना, शेनॉय का चेक रेडी है क्या सर, पूछेंगे नहीं, क्यों, बताया नहीं, बॉस ने बोला नहीं था, है ना। तो ये जो डिस्टिंक्शंस है गुण और कर्म के अनुसार है, ये गुण हम ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, इसका बहुत सारा एग्जाम्पल्स है हमारा शास्त्र में, बहुत सारा एग्जाम्पल्स है। ऋषि आइत्रिय इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल हियर। ऋग्वेदा में आइत्रिय उपनिषद करके का उपनिषद है, आइत्रिय उपनिषद, वेरी फेमस उपनिषद है। इट इज नेम्ड आफ्टर ऋषि आइत्रिय, नेम्ड आफ्टर अ ऋषि। एंड ऋषि आइत्रिय अवर्ण थे, चतुर्वर्ण से नहीं बाहर, अवर्ण थे। वो उपनिषद लिखा, आप सोचो कितना ऊपर वो छलांग मारा, है ना। ही हैड कम टू दिस लेवल, अगर उपनिषद लिखना है ना। वैसे अगर आप देखिए तो परशुराम, परशुराम वॉज born a ब्राह्मण but he became a क्षत्रिय, born as a brahmana but he became a kshatriya, है ना। So he came down, fell down. Then similarly you will find Valmiki. Valmiki was a Ratnakara, forest dweller, dacoit, forest dweller bhi nahi, dacoit. He became Valmiki. So like that, Vyasa Bhagavan was born to a fisher lady, है ना। Satyavati, born to Satyavati, a fisher lady. And Vyasa, who has, to his credit, written so many, one of the, all the treatises are done, his contribution is there. That we will see next class. Anyway, now I got 10 minutes more, okay? Since we started 10-12 minutes late. To the topic when somebody said, we are all religions same. Are all religions same? Now this, I'm going to, there's a lot to talk about this Varna Vyavastha. I have just touched the basics of it. We will see it in the next class also, a little bit of more of Varna Vyavastha. Why? Because this is the second part of Veer Savarkar's definition. And the third part, that also basic, I will just touch on that also. Now, are all religions same? What do you think? Because we have to clarify the definition of religion. Huh. Then it will really get it. Correct. It is derived. Correct. That is a philosophical understanding. But basic understanding, are all religions same? Because many a times I listen, no, ये सब कुछ एक ही है, सब कुछ एक ही. People say, and especially youngsters, they say, ये सब एक है, सब एक. क्या why you're talking like that? हिंदू क्या करते हैं, सब एक ही है ना. तो पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा नहीं, फिर ऐसे सब एक है. Something are common, like everyone says that do not kill, do not harm other, help mankind to help. You agree? People say that. Yeah, people say. So do not kill. Okay, do not kill. Do not kill. Geo or Gene do. Live and let live. And what else? A lot of people say that every religion says that peace is the ultimate message. Peace. Yeah. Peace is best. Okay, peace. Not good. Tell. Peace. What else?
Compassion. Compassion. दया धर्म का मूल है। हाँ, वो सब उसमें आता है compassion. Now let me answer me one simple question. If I'm an atheist, I don't believe in God. You mean to say I should not, I will not have all these things? I'll still have. So what is the contribution of religion to this? I don't believe in God. But yet my father and mother told me do not kill. ऐसा नहीं, अच्छा नहीं है, मत करो. वो नहीं बोलते क्या भगवान के लिए नहीं, लेकिन बोलते हैं मत करो, ऐसा नहीं बोलने का, ये झूठ नहीं बोलने का, ये गरीब है उसको कुछ दे दो. कंपैशन नहीं होगा, निरीश्वरवादी होगा तो होगा. तो रिलीजन क्यों बोलते हैं? रिलीजन में खाली आते हैं. जो रिलीजन में नहीं बिलीव करता है उनमें भी ये सब क्वालिटी होगा. So why are you ascribing all these qualities to religion? Because a lot of times people don't, when you teach something good to people, they don't want to listen. If you attach it to religion, then people tend to believe, especially in a country like India, where everyone is going in that angle, people tend to believe. हाँ, लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है? एक तो फर्स्ट, आर ऑल रिलीजन सेम? No. Anybody who feels yes? No, because others are saying no, you don't tell. You tell what you feel. Some of the things are same, otherwise they are. Correct. So all these things, yes, it is there in religion also, some of the religion, but not all religions. At the same time, it is not necessary. It has to be only because a religious person will have compassion or he will not. Not necessary. A non-religious person will have also compassion. He will also will not kill. He will also feel, no, I should not be doing this. झूठ नहीं बोलना चाहिए. There should be shanti, there should be peace. वो भी बोलेंगे. So when we say, are all religions same? No, in that sense, it is not. Chalo, most of the people are saying no. Okay. But we'll have to do one study of this. इसका एक स्टडी करना पड़ेगा. क्या स्टडी करना पड़ेगा? चलो मैं पहला फर्स्ट स्टेप में आपको बताता हूँ, उसके बाद आप लोग ही करो. नेक्स्ट क्लास में हम उसके बाद में और एक्सपांड करेंगे. ठीक है? ये बहुत बहुत बढ़िया टॉपिक है. Who suggested this topic? कोई तो सजेस्ट किया था. आर ऑल रिलीजन सेम? कौन बोला था? अरविंद जी बोले थे. चलो, लेट अस सी नाउ. See, when we look at religion, broadly, there are two religious thoughts. Broadly, okay? One is a religious thought in India, and second, the religious thought in the desert from Judaism. तो जुडाइज्म मतलब जूस का जो रिलीजन है, उसमें से क्रिश्चियनिटी आया है, एंड उसमें से फिर बाद में इस्लाम आया है ना? तो वन इज जो हमारा ओरिएंटल है, तो यहाँ पर जो हिंदू संस्कृति है, हिंदू धर्म है, जहाँ से बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म आया है, और एक है जो जुडाइज्म डेजर्ट से आया है. सो व्हाट यू कॉल इट एज ओरिएंटल and Semitic. Okay, two distinctions. Oriental means Hindu, Judaism. इसमें क्रिश्चियनिटी आ गया है, and then Islam has come. From Hindu, Buddhism, Jainism, Sikhism. Okay, so there are two broad divisions. हमारा क्वेश्चन, आर ऑल रिलीजन सेम? अबे इसके ऊपर हम सोच विचार करेंगे, और इसका सोच विचार आप लोग को ही करना है. नेक्स्ट क्लास में सोच विचार करके आ जाओ. हम एक एक एस्पेक्ट लेंगे. ओरिएंटल में क्या आता है,
उनका विचार कैसा है, जुडाइज्म में विचार कैसा है, या इस्लाम में विचार कैसा है, क्रिश्चियनिटी में विचार कैसा है, इनका विचार और हमारा विचार, इसके बारे में हम सोचेंगे। और फिर बाद में हम कंक्लूजन में आएंगे, हाँ दोनों साथ, आर ऑल रिलीजन सेम और आर रिलीजन नॉट सेम, उसका फिर कंक्लूजन लेगा। ये क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन, इसका अभी कंक्लूजन नहीं है, हवा में नहीं बात कर सकते हैं, है ना। हम सोचने वाले लोग हैं, हम हिंदू है तो सोचते हैं। हाँ, ये बहुत विचित्र प्राणी प्राणी है पूरा दुनिया में, सोचने वाला प्राणी लोग हैं हम, है ना। बिना सोच का हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आर ऑल रिलीजन सेम क्वेश्चन, I only give you a broad hint, Oriental and Semitic, and we will take every aspect, and then we will see, compare and see, and then conclusion लेके आएगा। So this topic we will continue next week. At the same time, वर्ण व्यवस्था में भी जरा और मुझे बोलना था, लेकिन टाइम नहीं है, आज टाइम खत्म हो गया है। So what we will do is, shall we conclude, or if you all have got any questions to ask? Any questions to ask online also, online people, if you got any questions to ask? You can take a question from the online. या ऑनलाइन में मैं पूछ रहा हूँ, जो भी ऑनलाइन में है, आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। People who are there online, can you all hear me? The end of it, don't say we didn't hear at all. Yes, sir, we can hear you. Yes. You all have got any questions? Who's out expired some other country, and let us say for 2, 3, 4 generations it stays there. If you're still calling us a Hindu, That Hindu, we have got one very good example for this. During the Britishers, when they had all these tea plantations, so they had taken these laborers from Bihar, etc., no? to the Caribbean islands, Guyana, वगैरह वो सब Caribbean islands में लेके जाके, they are there in the Caribbean for the last 150 years. When they went from here, कहते हैं they had taken only the copy of the रामचरितमानस, अपने साथ सिर्फ रामचरितमानस लेके गए। तो ऑफकोर्स कपड़ा वपड़ा है, लेबरर्स है, लेकिन उनका रामचरितमानस उन्होंने लेके गया था। Even today, recently, Prime Minister Modi was there in Guyana, and the President and the Prime Minister of Guyana both are Indians and ladies, and so they were talking about their generations and all those things. What I want to say is, the question is are they Hindu? They are. How? Culturally Hindus. Because they have already moved to that is why they carried the Ramcharitmanas and went. So they have already reached the second, what you call second or the third. the second and third is very strong. So geography doesn't matter. Doesn't matter. It doesn't matter. So for them, nobody can remove the Ramayana from them. क्योंकि वो ingrained है. Same question if you reverse. So foreigners who follow, come here, look at our culture, want to stay back, follow it, and leave their legacy behind to take this back there and preach. How do we protect them? See, if they have come and they have already become, they have got influenced with the knowledge systems. They have started practicing the Hindu way of life there also. So when they come here, they are already ingrained in that. So they have already dived into the second or the third. More than the second, the third. The crucial point is the second and third. Yes. Once you reach the second and third, you cannot remove the Hindu out of it. Strongly you can arrive at one conclusion that
Hinduism is the way of life. So India or Bharat for that reason is not just the boundary, geographical boundary. True, but then when Veer Savarkar wrote this particular definition in his book, Hindu Rashtra Darshan, in that book you'll find this definition. He wrote with a purpose. Purpose was to explain what is Hindu Rashtra. ये हिंदू राष्ट्र क्या है? तो हिंदू राष्ट्र कहने के लिए पहला हिंदू कौन है बताना पड़ता था. तो हिंदू का अगर आप बुक पढ़ेंगे तो कौन हिंदू है करके 300-400 पेज का विवरण है. From various scriptures he has quoted. And then he came to the Rashtra. Many people think Hindu Rashtra means there is a difference between the word Rajya and Rashtra. Rajya is state. Rashtra is a country, but the country, that word Rashtra has got culture ingrained in it. इसके लिए आपको जो भी thinkers होता है, जैसे स्वामी विवेकानंद, during Veer Savarkar's time, from Veer Savarkar, but from the religious side, Swami Vivekananda, was a great influencer on the minds of the people here in India today. After Vivekananda, Aurobindo, all these people, Deen Dayal Upadhyay, they talked about cultural nationalism. वो कहते हैं कल्चरल नेशनलिज्म मतलब ये जो नेशन है ये एक संस्कृति से जुड़ा हुआ राष्ट्र है. इसके लिए पॉइंट 2 में जो मैं बोला ना, वो पॉइंट 2 वो कल्चरल नेशनलिज्म है. फर्स्ट स्टेप में आप बैठ के आपका नेशनलिज्म बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आपको सब अलग अलग ही दिखाई देगा. लेकिन जैसे ही संस्कृति में आ जाता है, जुड़ जाता है, आपको यूनिटी दिखने को लगता है. और वो यूनिटी में नेशनलिज्म, इसके लिए वो कल्चरल नेशनलिज्म कहते हैं. दीनदयाल उपाध्याय टॉक्स अबाउट कल्चरल नेशनलिज्म. स्वामी विवेकानंद टॉक्स अबाउट वन कल्चरल बॉडी, वन great cultural body he talks about. So all those things, aspects are with culture, to do with culture. Anybody got a question there online? Anybody online has got any question? Okay. Foreign countries are adopting our culture. Yes. Correct. But people are going down. Right. No, that changes are taking place, and that changes are because they see the strength of the unity lies in our knowledge systems. The strength lies in our knowledge systems. इसके लिए जैसे फॉरेनर हो गया, वो उपनिषद में आते हैं तो बोलते हैं ओ माय गॉड दिस इज नथिंग बट क्वांटम फिजिक्स है. So they talk about, oh man, this is nothing but science. So it enamors it. People are attracted to it because this is not something to do with any मरने के बाद. यहाँ पर जीने का टाइम कैसा जीना है वो कहते हैं हमारा रिलीजन. मरने के बाद कौन देखा है? कोई नहीं देखा है. कोई आके बताया थे हमको ऐसा है करके, 72 है 20 है, कुछ बताया नहीं अभी तक. Our knowledge system was so good. We were so good in astrophysics. Science began active. Yes. Then what was the sorry state of mind? Sorry state of mind. Yeah, what has happened? Mind of having always at the epitome of the topmost. Correct. In all walks of life. Yes. Unfortunately, we were not united. Yeah. People had slowly degraded this Chaturvarna, which I just told you, no? Chaturvarna, which I told you. One more aspect I just touched because he said that subject, I will tell you. If you take in a Chaturvarna, if you notice in a Chaturvarna, the first two are Brahmana and Kshatriya. Right? I told you that gunas are Sattva, Rajas, Tamas. Kshatriya is Rajas, Sattva, Tamas. He is a thinker, philosopher. He is an administrator, leader, king, वगैरह वगैरह. Now,
what happened over a period of time, and before the period of time, what was the हमारा जो पौराणिक एज से या उसके पहला वैदिक का एज से, ये जो ब्राह्मण ऋषि होते थे ना, वो वन में होता था, उनका कुटिया वन में होता था। आप हमारा जो महाभारत और रामायण सीरीज भी देखेंगे तो राजा मिलने के लिए जाता तो वन में जाता था, उनका रथ लेके वन में जाता था ऋषि को पूछने के लिए, अभी ऐसा ऐसा हो गया, क्या करना है? तो फिर ऋषि बताते ऐसा ऐसा करने का है, अच्छा ठीक है, तो फिर वापस जाते थे राजा, और फिर बाद में जाकर इम्प्लीमेंट करते थे। सो द ऋषि यूज्ड टू बी इन द नॉट इन द किंगडम, इन द फॉरेस्ट। ऑफ कोर्स द किंग इज इन द किंगडम, but this administrator, he is to take the advice of the thinker. The thinker is to be different from the administrator. King और thinker ऋषि अलग होता था, अलग दोनों पावर। ये देखो, ये दोनों बहुत बड़ा पावर है, थिंकिंग पावर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, दोनों अलग है, दो अलग अलग व्यक्ति में ही होना चाहिए। हाँ, राजगुरु बोलते थे। तो क्या होता था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हाँ, ये जो ब्राह्मण थे ना, वो बोला मैं खुद राजा बनेगा तो क्या होगा, मैं खुद राजा बनेगा तो मेरे पास बुद्धि है, और मेरा बुद्धि का जो बल है कोई भी सामने नहीं आ सकता। अगर मैं ही राजा बनेगा तो क्या होगा? तो व्हाट हैपेंड वाज स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम slight degradation started. Well, the power, it is power of knowledge. King is coming and bowing at my feet. It is not a small thing. A king of the entire coming and bowing at my feet. So that ego comes. It's natural for all of us also. कोई आके हमारा पैर काम भी तो फट करके आशीर्वाद दे देता है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है अरे मेरा पैर पे गिर गया तो आशीर्वाद देता है। अभी मेरे में कुछ ऐसा गुण तो नहीं आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन हमको उस टाइम में सोचो राजा आके अगर पैर पे गिर गया तो, है ना, तो कितना हम में अहंकार आएगा, है ना, अहंकार आएगा तो। और उन राजा के पास बल है और ब्राह्मण के पास बुद्धि है, और एक ही व्यक्ति में आ जाएगा तो क्या होता है? तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिग्रेडेशन स्टार्टेड, एंड दैट डिग्रेडेशन, फिर मिक्सिंग अप ऑफ वर्ण ऑल्सो स्टार्टेड। वर्ण मिक्सिंग बोलते हैं ना, वर्ण मिक्सिंग। वर्ण मिक्सिंग मतलब क्या होता है? भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर में ही बोला है, वर्ण संकर, मिक्सिंग अप ऑफ वर्ण। आई नो ऑफ वन इन माय, आई विल नॉट टेक द नेम, मोस्ट ऑफ यू नो आल्सो, देयर वाज अ डॉक्टर, ही वाज एमबीबीएस डॉक्टर, and he was not least interested in doing his what you call प्रैक्टिस। तो रोज सुबह डिस्पेंसरी ओपन करने का और टाइम्स ऑफ इंडिया लेके पढ़ाई करनी। दोपहर को टाइम्स ऑफ इंडिया खत्म हो गया, बंद करके गया घर पे, खाना खा के सो गया, शाम को दूसरा। तो क्या है, हमारा जो गुण और कर्म के हिसाब से है ना, उनका गुण है ना एमबीबीएस में ताई ने, कर्म में डॉक्टर है, बाय कर्म ही इज बिकम डॉक्टर। He was from a very rich family. So क्या हो गया रहेगा, मदर फादर बोला रहेगा चलो 50 लाख है मैं देता हूँ, एडमिशन ले लिया, बुद्धि तो है, पास हो गया, लेकिन कर्म से डॉक्टर, लेकिन गुण है he had some other गुण, कर्म दूसरा। So what happens, such people can never be a successful people. सक्सेस आना है तो गुण के हिसाब से, इसके लिए बोलते हैं ना, बच्चा का जो जिधर जो करने का है उसमें उनको एनकरेज करो। अगर बच्चे को कुछ करना है तो हम क्या करते हैं, उनको तोप देते हैं, यू हैव टू बिकम डॉक्टर। हमारे फैमिली में कोई डॉक्टर है, तुम बनने गए, तो बच्चे में लेकिन डॉक्टर बनने का गुण है ही नहीं, उनको इंजीनियर बनने का या दूसरा कुछ बनने का। शुड नेवर डू दैट। अलाउ हिज गुण, गुण मतलब वासना होता है, उनका जो थिंकिंग होता है, जिसे जन्म दिया है वो उसका कुछ अलग ही होगा, वो गुण के अनुसार उनका कर्म होना चाहिए। सच पीपल विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल। ठीक है, विल स्टॉप एट दैट, इज अ ह्यूज टॉपिक, बट नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट संडे विल मीट एट द सेम टाइम
We will see that are all religions same. We will do some bifurcation, little thinking. वर्ण व्यवस्था में जरा और बात करेंगे, फिर धर्म का और 18 नॉलेज सिस्टम फटाफट बता देंगे. Next Sunday, same time. Okay, we'll conclude with a prayer. धन्यवाद. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. थैंक यू सर. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, everyone. Next Sunday, same time, 4 o'clock. Thank you.